नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। ड्राई पोर्ट तोड़फोड़ कांड में लिप्त आईएनटीटीयूसी नेता प्रसन्नजीत रॉय पार्टी से बहिष्कृत। सिलीगुड़ी के निकट एनजेपी के पास ड्राई पोर्ट परिसर में आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ की घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने अपने श्रमिक संगठन आईएनटीटीयूसी के नेता प्रसन्नजीत रॉय को पार्टी से बहिष्कृत कर दिया है। आज यानी रविवार को टीएमसी कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में डाबग्राम फुलबाड़ी के विधायक व राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने यह जानकारी दी। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस का दार्जिलिंग जिला के अध्यक्ष रंजन सरकार भी मौजूद थे। मंत्री गौतम देव ने कहा कि ड्राई पोर्ट की घटना को लेकर आईएनटीटीयूसी नेता प्रसन्नजीत रॉय को पार्टी से बहिष्कृत कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि न्यू जलपाईगुड़ी में आईएनटीटीयूसी की नई कमेटी का गठन किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि एनजेपी इलाका काफी महत्वपूर्ण स्थान है। रेलवे के साथ साथ आईओसी और एफसीआई का यहाँ बड़ा कारोबार है। यहाँ शांति बनाए रखना आवश्यक है। गौरतलब है कि ड्राई पोर्ट में तोड़फोड़ की घटना के बाद पुलिस प्रसन्नजीत रॉय की तलाश कर रही है। हालांकि तोड़फोड़ के मामले में काफी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही। দলে ভাবমূর্তি এত ঠুনকো নয় যে দলে ভাবমূর্তি ভাঙবে। তৃণমূল কংগ্রেস একটা রাজনৈতিক দল, যে ভোটের মুখে দাঁড়িয়েও এই ধরনের কড়া সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আমি একটা কথা খুব স্পষ্টভাবে বলতে চাই, খুব ক্যান্ডিডেটলি ক্লিয়ার করতে চাই। আমাদের দল তৃণমূল কংগ্রেস বা ওখানকার বিধায়ক হিসেবে এনজিপি তে বামফ্রন্ট আমলে কি চলতো কি হতো আমরা সবাই জানি, কিন্তু আমাদের দল একেবারেই পরিচ্ছন্নভাবে চলেছে। এনজিপির থেকে কোনো আর্থিক সহায়তা আমাদের দল এখানে চলছে। রাজনৈতিক সহায়তা তো নিশ্চয়ই আছে, মিছিল মিটিংয়ে তারা এসছে, লোক দিয়েছে, আমাদের পার্টি প্রোগ্রামে দেখেছে, তারা তো পার্টি পার্ট অ্যান্ড পার্সেল। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে আমরা ওরকমভাবে কোনো ইউনিট থেকে পয়সা নিই না। কোনো পয়সা কোনো ইউনিট থেকে আমাদের কাছে কোনোদিন আসেনি। এটা আমি একদম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই। আর এনজিপি হচ্ছে উত্তর পূর্ব ভারতের খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এটা খালি রাজনীতির বিষয় নয়, এখানে প্রবেশদ্বার, এখানে যেমন আইসি টার্মিনাল, একটা বিরাট সাপ্লাই চেন আছে এখান থেকে একদম নর্থ বেঙ্গলে প্রায় সব জায়গায়। একটা মৌরিগ্রাম, তারপরে বজবজ, আর এখানে এনজিপি। সুতরাং এটাকে যেমন ডিস্টার্ব করা যাবে না, তেমনি এই প্রিস্টিন ইন্ডিয়া যারা এটা কাজটা করছে, আমি যখন এসডিএ চেয়ারম্যান ছিলাম 3 বছর নিরন্তর প্রচেষ্টা এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাপোর্ট, এইখানে এই রেল লাইন ঢুকেছে এবং আইসিডি এটা পোর্টটা চালু হয়েছে। 2টো পোর্ট আমরা এখানে করতে পেরেছি। আরেকটা সিএম ম্যাডামের সমর্থন নিয়ে ফুলবাড়িতে, যেহেতু আন্তর্জাতিক বর্ডার শুল্ক বিভাগ ওটা কন্ট্রোল করে ওইখানে, আর আন্তর্জাতিক, আর এইখান থেকে এই আইসিডি এবং সেখানে ল্যান্ডের যে প্রবলেমগুলো ছিল, যে এটা মর্টগেজ দিয়ে লোন ইত্যাদি নেওয়া যাবে কিনা, সেগুলো সমস্ত ক্লিয়ার করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। এখানে টি পার্ক যেরকম লোকে ব্যক্তিগত ইনভেস্ট করে করতে হচ্ছিল, এখন আর সেটা করতে হবে না, সে ব্যাংকিং থেকে লোন পাবে। এবং এই যে পণ্য যাতায়াতের জন্য এটা ডাইপোর্টটা তৈরি হলো, এটা আগামী দিনে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। সুতরাং শিল্পের যে একটা ব্যাপক সম্ভাবনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চান সেটা অগ্রগতি হোক, সেটা এগিয়ে যাক। সেই ক্ষেত্রে শান্তিটা একটা খুব বড় বিষয়। শান্তি বজায় না রাখলে কেউ ইনভেস্ট করতে আসবে না, কোনো উদ্যোগপতি আসতে আগ্রহী হবে না। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही। ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को हुआ है भारी नुकसान। अब तक 10 शव बरामद, 150 से अधिक मजदूरों की मौत की आशंका। उत्तराखंड के जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर दूर पेंग गांव के ऊपर बहुत बड़ा ग्लेशियर फटा, जिसके चलते धौली नदी में बाढ़ आ गई। इसके बाद हिमस्खलन हुआ और ग्लेशियर की बाढ़ के चलते ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस बीच 150 लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। अब तक 10 शव किया जा चुका है बरामद। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत बोले, नदी के बहाव में आई कमी घबराने की बात नहीं। इस बीच उन्होंने लोगों से अफवाहों पर यकीन नहीं करने की बात भी कही। ट्रक के धक्के से एक व्यक्ति की मौके पर मौत, आक्रोशित लोगों ने किया पथावरोध।
सिलीगुड़ी के भावेश मोड़ इलाके में रविवार सुबह ट्रक के धक्के से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आज रविवार सुबह वह व्यक्ति मांस खरीदने के लिए भावेश मोड़ बाजार पहुंचा था। बाद में सड़क पार करने के दौरान तेज गति से आ रहे सीमेंट से लदा एक ट्रक ने उसे जोरदार धक्का मार दिया, जिससे घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। शव की शिनाख्त जय सरकार के रूप में की गई है। वह सिलीगुड़ी नगर निगम के 28 नंबर वार्ड का रहने वाला था। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने काफी देर तक सड़क अवरोध कर यातायात को ठप कर दिया। पुलिस द्वारा कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद पथ अवरोध समाप्त किया गया। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। पुलिस घातक ट्रक की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति सिलीगुड़ी के टिकियापाड़ा का रहने वाला था। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके से वाहन तेज रफ्तार से गुजरते हैं, जिससे यहाँ इस तरह की दुर्घटनाएं घटती रहती है। আজকে রবিবারে বাজারটা একটু ঘনই থাকে, কারণ মাংস নিতে আসছিল, পিকনিকে যাচ্ছিল হয়তো। এখানে গাড়িটা দাঁড় করে দিয়ে ওরা ওই পারে গেছিল মাংস আনতে। সিমেন্টের গাড়ি ঘুমায় এসে মাইরে দিয়ে চলে গেল। কোনো এখানে দেখতেছে একটা মোড়, এই মোড়ের মধ্যে কিরকম, কিন্তু ওদের গাড়িতে ব্রেকই নাই। কিন্তু এই সমস্ত গাড়ির তো ফিটনেস সার্টিফিকেট ওকে রয়েছে। কোথায় ওকে রয়েছে? প্রশাসনের পয়সার ক্ষেত্রে ওকে রয়ে গেছে। কারণ পকেটে যদি যায়, থানায় যদি কিস্তিটা পাওয়া যায়, ওকে গাড়িগুলো আমরা তো দেখি, আমি তো নিজেও তো দেখছি গাড়িগুলা পয়সা উঠাচ্ছে। আমি কিন্তু যখন প্রশাসন পয়সা উঠাচ্ছিল আমি কিন্তু টুক করে ফটোটা উঠেছি। সেই প্রশাসন চলে আসলো আমার কাছে, আপনি কেন ফটো উঠালেন? বলছে আপনি পয়সা নিলেন, কেন পয়সা নিলেন? ওই গাড়ির কাছ থেকে, ওই ড্রাইভারের কাছ থেকে কেন পয়সা নিলেন? ও নিয়ে যাচ্ছিল, ওভারলোড নিয়ে যাচ্ছিল। তো ওভারলোড নিয়েছে, তুমি কেস দাও, তুমি পয়সা নিলে পকেটে। বলে তোমাকে বড়বাবু ডাকতে। বড়বাবু আমার কাছে আসবে, আইসে বাধ্য হয়ে আমার কাছে মাপ চাইলো, আর কোনো দিন হবে না, ভুল স্বীকার করে নিল। তারপর বলছে ফটোটা আপনি ডিলিট করেন। বলছে আমি ফটোটা ডিলিট করব, আপনি আগে কান ধরেন, এরকমও বলেছি। তাই প্রশাসন যদি পয়সা খায়, যাকে দিয়ে আমরা ব্যারিকেড দিয়ে রাখবো, ব্যারিকেড যদি খায় নেয়, पैसा खाए। पश्चिम बंगाल सरकार के पर्यटन विभाग के सहयोग से हिमालयन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा आयोजित बंगाल हिमालयन कार्निवल की शुरुआत गजलडोबा में आज किया गया। इस अवसर पर राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव, जलपाईगुड़ी के विधायक खगेश्वर रॉय, जलपाईगुड़ी के जिला शासक और विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों की इस कार्यक्रम में उपस्थिति रही थी। न्यूली वेंचर जॉइंटली विद Tourism Department, Government of West Bengal. They are associating HHTDN to organize such a type of beautiful tourism carnival in the hills, especially Queen of Hills, Darjeeling, on 5th, on 6th, Kalimpong, a newly made district in the hills, and of course this beautiful lush green and surrounded by beautiful water bodies and Tista river, popularly known as Gajaldoba, renamed by our Honorable Chief Minister Srimati Mamata Banerjee Bhorairalu, and this project with 208 acres of land is the one of the biggest integrated tourism hub in India, and it is a dream project of our Honorable Chief Minister Mamata Banerjee. And every time when she visits North Bengal, especially this area, she loves to speak about this Bhorairalu, which is now taking its shape, incorporating several components for attracting tourists at a large. And I'm thankful to HHTDN to choose this area as one of the venue, and this concluding program is being held here in this prestigious
ট্যুরিজম কার্নিভাল। আমরা সবাই জানি যে এই ট্যুরিজম কার্নিভালটা এমন সময় হচ্ছে যখন ট্যুরিজমের অবস্থাটা সারা দেশে খুব একটা ভালো ছিল না। আমরা লাস্ট 1 বছর এর কিছু কম সময় মোটামুটি জানুয়ারি রেন থেকে যে সময়টা আমরা পেরিয়ে এসেছি ট্যুরিজমে, সেটা একটা ভয়ঙ্কর টাইম যেটা আমরা পেরিয়ে এলাম। कालियागंज के चांदोइल फुटबॉल मैदान में नहीं, अब रायगंज स्टेडियम में होगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा। उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर 2 जिलों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा कालियागंज के ब्लॉक के चंदोइल के फुटबॉल मैदान में होने की बात कही गई थी। इसके लिए सभी प्रकार की तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन इस बीच टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुब्रत बख्शी, उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल के पास एक निर्देश आया कि मुख्यमंत्री की सभा अब चंदोइल फुटबॉल मैदान में नहीं बल्कि रायगंज स्टेडियम में होगी। उन्होंने कहा कि रायगंज स्टेडियम में अब सभा की तैयारियां शुरू कर दी गई है। सभा में उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर जिले के सभी शीर्ष नेता और कर्मियों की उपस्थिति होगी। मुख्यमंत्री 10 फरवरी यानी बुधवार को जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन तैयारियों में। এখানে আসলে প্রথমে অপশনও ছিল যে আমরা দুই জায়গায় অপশনটা ছিল যে রায়গঞ্জে ছিল আর ওই উত্তর দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুরের মাঝামাঝি একটা জায়গায় ছিল। পরবর্তীকালে রাজ্য থেকে নির্দেশ আসে যে না আপনারা ওটা রায়গঞ্জেই করেন, সেই হিসাবে আমরা ওখান থেকে চেঞ্জ করে এটা রায়গঞ্জে করছি। না না অন্য কোনো ব্যাপার নেই, অপশন আগে থেকেই দুই জায়গায় ছিল। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। खुट्टा सुन्ने नभएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गऱ्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। किराती खंबू रॉय संप्रदाय की नए वर्ष उधौली साकेला पर्व आयोजित। अलीपुरद्वार जिले के कालचनी ब्लॉक के जयगांव खोखला बस्ती इलाके में रविवार को किराती खंबू रॉय संप्रदाय के नए वर्ष के अवसर पर मनाए जाने वाली उधौली साकेला पर्व का आयोजन भव्य रूप से किया गया।
डुअर्स के किरात रॉय खंबू समाज संस्कृति समिति की ओर से रविवार को आयोजित इस विशेष पर्व का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में किरात खंबू रॉय संप्रदाय के लोगों की संस्कृति के विभिन्न आयामों को दर्शाया गया। इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में डुअर्स के प्रत्येक इलाके से किराती खंबू रॉय संप्रदाय के लोग उपस्थित हुए थे। आयोजक कमेटी की ओर से दुर्गा थुलुंग रॉय ने बताया कि आज उनके लोगों के लिए नए वर्ष के शुभारंभ का दिन है। उनकी संस्कृति व मान्यता के अनुसार आज विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि नए वर्ष के पहले दिन आज सांस्कृतिक नृत्य के साथ साथ विभिन्न कलाओं को प्रदर्शन किया गया। येलेदोंग मतलब ये नया साल किराती खंबू राइयों का नया साल 5081 येलेदोंग उधौली पर्व साकेला पर्व हुँदैछ र यो पर्वमा हामी हाम्रो माङमा बिजुवाहरूद्वारा पूजा अर्चना गर्दै हामीले आफ्नो कुलदेव लगायत समस्त ग्रामवासी समस्त जातिहरूको निम्ति हामी हाम्रो पारुहाङ सुम्निमालाई हामी वर माग्छौँ कि हामीलाई सुख शान्ति हामीलाई शान्ति दिउन्, हामीलाई सुख दिउन्, हाम्रो सबै मानव जातिलाई नै सुख र शान्तिमा राखुन् भन्ने हामी वर माग्छौँ। आज हाम्रो कार्यक्रम जयगाउँ 1 नम्बर अञ्चलको बिहिबारे बजार अथवा गोबरज्योति खेल मैदानमा भइरहेको छ र यो आजको हाम्रो कार्यक्रम एक दिने कार्यक्रम हो। आज आप लोग के संस्कृति में क्या क्या प्रस्तुति की गई? हाम्रो आजको कार्यक्रममा विशेष गरी सिली नृत्य भने चाहिँ एउटा किराती खम्बुहरूको एउटा कल्चर हो। सिली नृत्य जो चाहिँ डान्स हुन्छ, त्यो सिली नृत्य आफ्नै एउटा अर्ग्यानिक ट्रेडिसनल माने पारम्परिक डान्स हो, नृत्य हो। यो आफ्नै यसको ढोल हुन्छ, झ्याम्टा हुन्छ, यसमा कुनै ट्र्याकहरूको प्रयोग गरिँदैन, जसलाई हामी सिली नृत्य भन्छौँ। आपका नाम? मेरो दुर्गा थुलुङ राई, मंगल सिंह राई मेरा सहपाठी है, केंद्रीय समिति का उपाध्यक्ष है। पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी समिति जलपाईगुड़ी शाखा का वार्षिक सम्मेलन आज रविवार को किया गया संपन्न। जलपाईगुड़ी के बाबूपाड़ा कर्मचारी भवन में इस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वार्षिक सभा के पहले झंडा तोलन कर और शहीद बेदी पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस सभा में अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने, बकाया डीए और कर्मचारियों को अन्य अधिकारों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस सभा में पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी समिति के जिला सचिव कौशिक सेन चौधरी, केंद्रीय कमेटी नेता इंद्रनील सन्याल, राज्य कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य स्वजन रॉय सहित अन्य समिति के सदस्य उपस्थित थे। আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী সমিতি তথা ডব্লিউবিএমও পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন কর্মচারী সংগঠন। আমরা কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে লড়াই আন্দোলন চালিয়ে থাকি। বিগত এক বছরে আমাদের যে কাজগুলি হয়েছে তার মূল্যায়ন এবং আগামী দিনে আমাদের কী কী কাজ করব, কী কাজ করতে হবে, যার মধ্যে আগামী আমাদের যে দাবি দাওয়াগুলো আছে বা নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের যে কাজগুলো আছে সেগুলো নিয়ে মূলত আলোচনা হচ্ছে এবং আমাদের লক্ষ্যমাত্রা স্থির। আলোচনার মধ্যে আমাদের যে দীর্ঘ বকেয়া যে আমাদের পাওনা গন্ডাগুলো আছে বা এই যে আমাদের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মচারীদের উপর যে নিপীড়ন চলছে, নিষ্পেষণ চলছে, পাশাপাশি এই যে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের যে অমানসিক পরিশ্রম করিয়ে তাদের যে 10 महीने बाद जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन में ट्रेनों का परिचालन शुरू, लोगों ने जताई खुशी। लॉकडाउन के कारण पिछले 10 महीने तक बंद रहने के बाद रविवार को जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन में ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू हो गया है। शनिवार रात को ही न्यू जलपाईगुड़ी हल्दीबारी सुपरफास्ट ट्रेन जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन पहुंच गई थी। रविवार सुबह ट्रेन जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन होते हुए कोलकाता के लिए रवाना हुई। इधर 10 महीने बाद इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण पिछले वर्ष मार्च महीने से इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन बंद हो गया था। आखिरकार रविवार को इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। दोबारा इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से रेल यात्रियों में काफी खुशी देखी जा रही है। रेल सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में हल्दीबाड़ी से जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन होते हुए और भी कई लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी। वहीं आज रेल यात्रियों को चेहरे पर मास्क पहनकर व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ट्रेन में सफर करते देखा गया। दीर्घ एक बছর পরে যে ট্রেন চলছে জলপাইগুড়ি মানুষরা যে চলাচল করতে পারছে, চলাচল করতে পারবে এখন থেকে দৈনিক শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি, এটাই হচ্ছে মেন। হ্যাঁ, ওখানে অনেক মানুষ
কষ্ট পাচ্ছিল যাওয়া আসার জন্য, যানবাহনের কষ্ট প্রচুর ছিল, কারণ আপনার বাসে করে যাওয়াটা ঠিক স্বাস্থ্যকর ছিল না, সকলেই মাস্ক পরতে পারতো না, আবার কেউ মাস্ক ছাড়াই চলে যেত। কিন্তু এখন কি হচ্ছে, ট্রেনের মধ্যে গেলে পরে সবাই মাস্ক পরে যাচ্ছে, সমস্ত কিছু মেনে চলছে নিয়মকানুন। 2020 সালের মার্চ মাসের 23 তারিখ থেকে শুরু করে কোভিড-19 সিচুয়েশনের কারণের জন্য আমাদের জলপাইগুড়িবাসী এই টাউন থেকে তরুণ করে সমস্ত ট্রেনের জন্য আমরা বঞ্চিত ছিলাম। আজকে থেকে হচ্ছে কোনো এই কলকাতা হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট ট্রেনটি যে চালু হয়েছে, তাতে হচ্ছে কোনো জলপাইগুড়ি প্রত্যেকটি হচ্ছে কোনো বাসী খুব ভালো, মনের দিক থেকেও খুব আনন্দ পেয়েছেন। এবং সাথে হচ্ছে কোনো দেখতে পাচ্ছি এখন স্টেশনে সবাই মাস্ক পরে আছেন এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সও মেনটেন করছেন, এটা খুব ভালো। রেল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই এবং সাথে হচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকেও ধন্যবাদ জানাই এবং রাজ্য সরকার যে এই হেল্পটা করেছেন তার জন্য খুব ধন্যবাদ। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मालदा दौरे से तृणमूल कांग्रेस में दिखने लगी है फूट के आसार। एक और नेता हुआ बागी, पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मालदा में रैली कर पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का आह्वान आम जनता से किया था। उनके इस दौरे का असर दिखने लगा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में बगावती सूर देखने को मिल रहे हैं। हरिश्चंद्रपुर इलाके के एक तृणमूल नेता ने अब पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर के वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस के नेता बजरंग अग्रवाल ने कहा कि उनको टीएमसी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए वहां पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरिश्चंद्रपुर इलाके में जब तृणमूल कांग्रेस का नामो निशान नहीं था, तब उन्होंने पार्टी का झंडा थामा था, लेकिन वर्तमान में उनको पार्टी में कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए वह पार्टी छोड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक किसी पार्टी का दामन नहीं थामा है, लेकिन कहा है कि अगर भाजपा की तरफ से उनको सम्मान दिया जाता है तो इस पर वे विचार कर सकते हैं। দল ত্যাগ করছি আমরা বিভিন্ন বহুদিন ধরে, আমি কোনো ব্লক কমিটি মিটিংয়ে চিঠি পাই না, অথচ আমি ব্লক কমিটিতে এখনও আছি না নাই সেটাও জানাচ্ছে না, বা কোনো চিঠিপত্র তো কিছুই দিচ্ছে না, কোনো মিটিংয়ে হলেও মিটিংয়ের চিঠিপত্র পাঠানো হয় না। বড় বড় প্রোগ্রাম হচ্ছে, দিদি আসছে এখন মালদাতে কিছুদিনের মধ্যে, তারও এখন পর্যন্ত কোনো খবর আমার কাছে নাই। সেই জন্য আমি দেখছি যে আমাকে এড়িয়ে চলছে দল, ওই জন্য আমি এই দল ত্যাগ করে এখন আমি অন্য কিছু ভাবনা চিন্তা করি। তৃণমূল দলটা আমি করি যখন 2-4-5 জন ঝান্ডা ধরনেওয়ালা ছিল, তার মধ্যে একজন আমিও ছিলাম। ক্ষোভ হচ্ছে ব্লক কমিটির উপর, যারা ব্লক কমিটি চালাচ্ছে, 2 ব্লকের যারা মালিক, তারা কোনো চিঠি আমাকে পাঠাচ্ছে না, বা কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলছে যে না, ও আমাদের তৃণমূলে কেউ নাই। যে আমি যখন কেউ না, তাহলে আমি আমার জায়গাতে চিন্তা করব। আমি দীর্ঘদিন ধরে কোনো চিঠি পাচ্ছি না, বা কোনো খবর পাচ্ছি না, কোনো প্রোগ্রামে যাওয়ার জন্য হোক, বা কোনো নেতা নেত্রীর কোনো প্রোগ্রামে হোক, কোনো নিয়ে আমাকে জানানো হচ্ছে না। সেই জন্য আমি এখন চুপচাপ বসে আছি, নিজে সততার সঙ্গে নিজে কাজ করতে চাই। আমি ওই দুর্নীতিমুক্ত নই, দুর্নীতিতে আমি যেতে চাই না। কাজে বলছি যে এই দলের যা অবস্থা এখন কাটমানি ছাড়া আর টাকা ছাড়া কোনো গল্প নাই। কাজে আমরা সততা মানুষ, সততা নিয়ে রাজনীতি করি। কাজে এইগুলো জিনিস আমাদের পছন্দ হবে না, আমরা এদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছি না, আর কাজে আমরা এই দলে আর থাকতে পারবো না। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।